Subscribe to my channel, it's Dipankar, to watch movie reviews and more. And press the bell icon to get the latest updates. 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे आने वाला है और इसी ओकेशन पर नेटफ्लिक्स पे एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। नाउ द क्वेश्चन इज, शुड वी रियली वॉच इट? हेलो एवरीवन, व्हाट इज अप? आई होप एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग गुड। और अगर आप गुड नहीं भी हो तो डोंट वरी, बी हैप्पी, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट वेरी सून। सो द फिल्म गुंजन सक्सेना इज बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ स्टोरी। First, let me tell you something about Gunjan Saxena कि कौन है गुंजन सक्सेना। Gunjan Saxena is an Indian Air Force officer and a former helicopter pilot. She is a 1999 Kargil War veteran and the first woman to be awarded with Shaurya Chakra. Gunjan Saxena was just 25 years old when she flew during the Kargil War. She helped in evacuating the wounded, transporting supplies to troops in the forward areas of Dras and Brutalik, and was assigned surveillance roles such as mapping enemy positions. Gunjan Saxena was the only woman in the Indian Armed Forces who served in the Kargil War. Her father, retired Lieutenant Colonel A. Saxena, and brother both served in the Indian Army. Now coming back to the film, Janhvi Kapoor has portrayed the role of Gunjan Saxena in the film alongside Pankaj Tripathi and Angad Bedi, who has played the role of her father and brother respectively. So the story goes like this. Little Gunjan is sitting inside a plane and opens the window as she wants to see the clouds and the sky. But her brother doesn't allow her to open the window as he is feeling sleepy. Gunjan becomes sad and sits quietly in her seat. A cabin crew member who saw her fighting with her brother to open the window walks up to her and takes her to the cockpit. Gunjan is amazed to see the sky in front of her. Gunjan asks the pilot if she can fly the plane, to which the pilot replies that she needs to become a pilot in order to fly a plane. And that's when Gunjan dreams of becoming a pilot and flying a plane, which later she does. When Gunjan grows up, she reveals her dream. Everyone is against her decision except one person, that is her father. उसके बाद वो किस तरह से अपने सपनों को जीतती है, that you will find out once you watch this film. This is a well-directed film and the story does not stray from its focus on Saxena's career goals and struggles for even a moment. और जानवी के एक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो वो बिल्कुल एवरेज थी as usual, और जिस तरह का अग्रेशन चाहिए था इस रोल को निभाने में वो बिल्कुल मिसिंग लगा मुझे। और पंकज त्रिपाठी के बारे में मैं क्या बताऊं, जो भी किरदार वो निभाते हैं उसमें जान डाल देते हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अंगद बेदी वाज आल्सो एक्सीलेंट। इनफैक्ट इस फिल्म में जितने भी एक्टर्स हैं सभी ने अपने किरदार को बेहद खूबसूरती से निभाया है। पर एक ही कमी नजर आई मुझे इस फिल्म में, लेकिन वो बताने से पहले लेट मी रिमाइंड यू, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आवर वेबसाइट www.dkstudios.in, where we provide services like 2D and 3D animation, graphic design, book publishing, branding, content writing, IT and software developments, and more. The link to our website is given in the description box down below. Do check out and don't hesitate to call us if you need any of these services. तो एक जो कमी मुझे लगी इस फिल्म में वो ये कि गुंजन सक्सेना का जो स्ट्रगल है, जिन मुसीबतों से वो गुजरी, जो तकलीफें उठाकर वो इस मुकाम तक पहुंची, वो कहीं ना कहीं बहुत ही शॉर्टकट वे में दिखाया गया है। आई थिंक बहुत अच्छे से दिखाना चाहिए था। और अगर आप भी ये मूवी देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको भी एंड में ये जरूर लगेगा कि मूवी बहुत ही जल्दी खत्म हो गई। तो ये था इस फिल्म का रिव्यू, और अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या ऑडियंस को ये मूवी देखनी चाहिए। एक तरफ है नेपोटिज्म जिसके खिलाफ खड़ा है पूरा देश, और एक तरफ है ये फिल्म जो इस देश के एक बहादुर बेटी के ऊपर आधारित है। एक तरफ है ये ऑडियंस जो टोटली नेपोटिज्म के खिलाफ है एंड नो मैटर व्हाट वो मूवी देखेंगे ही नहीं, और दूसरी तरफ है ये ऑडियंस जो ये सोचकर मूवी देखेंगे कि ये गुंजन सक्सेना की कहानी है, जिनका कारगिल युद्ध में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। I think you already know that Gunjan Saxena has been produced by Dharma Productions and Z Studios. लेकिन अब जब ये मूवी नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है, पोस्टर्स से Dharma Productions का नाम हटा दिया गया है, but when the movie starts you can see the logo of Dharma Productions in it. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो ये दिखाकर कि करण जौहर इज नोवेयर एसोसिएटेड विद द फिल्म? अभी अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो मूवी हॉल सारे के सारे बंद है, और इसी वजह से मोस्ट ऑफ द मूवीज आर गेटिंग रिलीज्ड ऑन द OTT प्लेटफॉर्म्स। अब अगर मोस्ट ऑफ द पीपल हैव ऑलरेडी टेकन द सब्सक्रिप्शन ऑफ द OTT प्लेटफॉर्म्स तो कोई भी मूवी रिलीज हो वो तो देखेंगे ही, लेकिन जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी और मूवी हॉल्स रीओपन हो जाएंगे तब क्या होगा? लेकिन अब उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक फिल्म से दूसरे भी एक्टर्स जुड़े हुए रहते हैं जिनका नेपोटिज्म से कोई लेना देना नहीं। उनका क्या, उनके हार्डवर्क का क्या, उनके टैलेंट का क्या? ये तो है उनके बारे में जो पर्दे के सामने रहते हैं, लेकिन उनका क्या जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, जैसे स्पॉट बॉय, मेकअप मैन, इंटर्न्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, वो तो अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं। उनका तो नेपोटिज्म से कोई भी लेना देना नहीं है। हम सब चाहते हैं कि सुशांत को जस्टिस जल्द से जल्द मिले, और इंडस्ट्री में जो ये नेपोटिज्म का गेम है
वो बंद हो जाए। लेकिन अब हमें ये सोच समझ कर डिसाइड करना है कि क्या हमें वाकई में बिग बैनर फिल्म्स को बॉयकॉट करना है या नहीं। So that was all for today. I won't ask you to go and watch this movie. लेकिन अगर आप ये मूवी देखते हो तो do let me know how do you like it in the comment section down below. And I'll see you guys in my next video. Till then, stay safe, keep loving, keep supporting. Share this video if you feel it's worth sharing. Subscribe to my channel if you are new and follow me on my Instagram handle. Tata.